So we have Ma'am Astha, who is playing the role of a mathematics teacher of Standard 10, and her name is Archana. Preeti Ma'am is student in the classroom, and when we will show home, so she will be acting as the mother of Ma'am Archana. Okay? Shweta Ma'am is a student when we will show the classroom scene, and at home she is the aunt of Archana. Okay? Sahu sir will be playing the role of the principal, and Prashant sir will be playing the role of Archana Ma'am's cousin brother who lives in Goa. And in classroom scene he will be acting as student. Here Prashant sir जो कि अर्चना की कजिन है, दैट इज अर्चना मैम की कजिन का, और हम देखते हैं कि किस तरह से अर्चना मैम वेडिंग अटेंड करने जा पाएंगी या नहीं, यही तो सवाल है. सो लेट्स सी दिस थ्रू दी एक्ट. एंड वन मोर थिंग, स्टैंडर्ड 10 के बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत सामने हैं. दिसंबर का मंथ है जो कि बहुत ही क्रूशियल समय होता है, जहाँ पे क्लास 10 में रिविजन बहुत ही स्पीड में जोरों शोरों से चलता है. सो लेट्स सी दैट थ्रू दिस एक्ट. Of the school where students are already sitting in the classroom. This is standard 10 and the teacher enters the class. Good morning, students. Good morning, teacher. So, how are you all? Thank you. Fine. Okay, Fine. sit down. First of all, sit down. Thank you, ma'am. So, as you know, this is the time of December and your pre-board is near. So, you have to prepare well for your mathematics exam. Okay? Yes, ma'am. So, we will revise the lessons and all the formulas. So, be prepared for that. And as your exam is near, so if you have any doubt, ask me. Okay? Okay, ma'am. So you can see scene of the classroom. Children are very active. All are focused, paying attention. And Archana ma'am, as she said, this is a very important time. So she has come prepared with a revision, and she has started the revision on the board. So students, let's learn the formula. So first of all, write down area of triangle. Area of triangle. So remember this, area of triangle equals to half into base into height. Half into base into height. Yes. And area of cuboid. Second is area of cuboid. Area of cuboid. Equals to L into B into H. L into B into H. Now, third is area of scalene triangle. Area of scalene triangle. So, write it down clearly. Area of scalene triangle equals to root over S in the bracket S minus A, again in the next bracket S minus B, and in the third bracket S minus C. Okay? Remember? Okay, So, once again, tell me what is the area of triangle? half into base into height. Okay, very good. And area of Happy, and they say thank you. students. Thank you. वाओ, रिवीजन कितना अच्छा था ना? Yes, काफी अच्छा था. हमें लगता है ये बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे. आज मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाई. श्वेता, हम तो तुमसे अच्छा मार्क्स लेके आएंगे मैथ में इस बार. एग्जाम्स में देखते हैं. एग्जाम्स में देख लेना ना तुम. So you can see the children are very happy because the teacher has done her duty very well. Now the school is over. Now we see the scene of the house where Archana ma'am is very tired and she comes home, and her mother is there to welcome her. आज बहुत थक गए. तब से काम करके. बेटा तुम आ गई? हाँ माँ, मैं आ गई. चलो पानी पी लो. अरे मेरा बच्चा थक गया होगा. हाँ मम्मा, बहुत थक गए. ठीक है तुम रिलैक्स करो, मैं खाना निकालती हूँ. ओके? ठीक है मम्मी.
So we see Archana ma'am's mother, she brings some food for her and she serves her the food. चलो खाना खा लो। हाँ मम्मा खा लेते हैं। While having the food, Archana ma'am scrolls her mobile phone. And in between she gets a call of her cousin brother who is in Goa. हेलो हेलो। अरे वाह चना वाला तुम सुनी है कुछ? हाँ भैया कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। तुम्हारा बहन का शादी लग गया है, सुनी है कि नहीं? अरे हाँ मुझे पता ही नहीं था, कहाँ हो रहा है? अरे तुम नहीं जानती है, गोवा में। अरे वाह तब तो अच्छी बात है भैया। देख लो बहन, तुमको आना तो जरूरी है क्योंकि तुम्हारे अलावे मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। भैया शादी वैसे है कब? अभी तो दिसंबर में ही है, गोवा में है, तो तुमको जल्दी से आना है, 10 दिन पहले आना पड़ेगा। ठीक है भैया मैं आ तो जाऊंगी, पर उसी टाइम में मेरे स्कूल में बच्चों का 10th का बोर्ड का एग्जाम भी आएगा, प्री बोर्ड का। हम कुछ नहीं जानते अर्चना, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुमको आना ही पड़ेगा। देख लो तुम क्या करना ना, अपने स्कूल में बोलना कि मम्मी का ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है और तुम इसी बहाने से छुट्टी मांग लेना, ठीक ना? पर भैया ऐसे में तो बच्चों का बोर्ड्स का बात है ना, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तुम समझो, मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। शादी बार बार होती है क्या बताओ? ठीक है भैया मैं आना ही, सोचना नहीं है, आना है तुमको। ठीक है भैया। ओके ठीक है, कॉल रखते हैं, ठीक है? ठीक है भैया ठीक है। So we see that her brother, उन्होंने उसको बहुत फोर्स किया कि तुम्हें शादी में आना ही है और उनके दिमाग में ये बात इनपुट कर दी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बहाना बनाना है तुम्हें। So we see that Archana is in a deep thought. उसी रात Archana ma'am is in a deep thought and she is thinking कि शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करूं, शादी में जाऊं या फिर बच्चों का सोचूं? शादी में जाऊंगी तो मजा भी आएगा, शादी बार बार थोड़ी होती है। So पर the- क्या करूं, बच्चों का भी बात है, मुझे सोचना पड़ेगा। So the good angel of her mind is saying कि शादी में नहीं जाना है, and on the other hand the bad angel inside her mind is telling her, poking her कि नहीं शादी बार बार नहीं होती है, बहाना बना दो चले जाओ। So the next day एक काम करती हूँ, छुट्टी ले लेती हूँ और चले जाती हूँ। शादी कौन सा बार बार आएगा, बच्चों का तो पढ़ाई होता रहेगा। So the next day of the school and Archana ma'am goes to principal sir's office. May I come in, sir? Yes, sir. Good morning, sir. Sir, actually I want a leave because I have some urgence in my home, so I want some leave, sir. Then our final examinations is very near. So how it will be possible? Sir, I have completed all the syllabus of maths, so it will be helpful for the students. So I don't think there will be any problem for that. Then are you worried about the future of students and Excuse many me, sir. packages will expect from us how we'll get the more marks of our students. So how it possible? Excuse me, sir. Actually, I have some urgency. My mother is ill, so I have to take her to the Willows for her treatment. So it's very urgent, sir, please. Oh my God. Okay. Sir, this is my application. So we see that in principal sir's office, principal sir is convinced because Archana ma'am did not speak the truth. She has hidden the true reason of her leave. She wants to go to Goa to attend her cousin's destination wedding, but she said a lie. उन्होंने झूठ कहा and principal sir भी उनकी बातों को मान लेते हैं and sir has granted her the leave. So finally, Archana ma'am has
got the leave. Children in the classroom are waiting for the teacher to come. And children are talking about that ma'am has not come to school for 2 days. श्वेता, मैम अभी तक नहीं आई है। पता नहीं, वही तो मैं भी सोच रही हूँ रिविजन कैसे होगा। हमने सोचा वही तो। हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, पर अभी अरे तक हम मैम तो आई सोच- नहीं। मैम ना लगता है छुट्टी पे चली गई है। कैसे कैसे, अभी 10th का एग्जाम है। मैंने उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस के पास देखा था, शायद वो लीव ले एक बार हाजी भैया से बात करके आओ ना, देखो ना प्रिंसिपल सर से बात करके। राजी राजीव भैया, भैया, मैम का लीव ले ली है, मैम आ नहीं रही है। अर्चना मैम, ओह माय गॉड, ठीक है, थैंक यू भैया। So we see that the children who were very happy are all of a sudden sad because उनके expectations बहुत high थे कि revision बहुत अच्छे से होगा, maths में अच्छा score करेंगे, but उनके expectations पे पानी फिर गया है because मैम ने बिना inform किए, बिना hint दिए वो छुट्टी पे चली गई और वो भी 10 दिन की। राजी भैया क्या बोले तुम्हें? राजीव भैया बोले कि मैम छुट्टी ले ली है 10 दिन की। ओह माय गॉड, उधर पढ़ाई कैसे होगा? पता नहीं। So we see that children are very much worried and they are in a very panic mood कि अब क्या होगा, बच्चे टेंशन में आ गए हैं and finally the school is over, the children went home. Now the scene of the house where Archana ma'am is packing and she is very happy and she is ready to go to Goa. She is packing her bags and as she is packing her bag, her mother came and she said she is looking very ill and she collapsed. वो बेहोश हो गई। अर्चना calls auntie. आंटी, जल्दी चलिए, मामा को कुछ हो गया है, देखिए। क्या हुआ? Finally they are taken to the hospital. चलो मामा, जल्दी हॉस्पिटल चलो। So you can see because of going to the hospital, they have missed their plane. मामा ठीक है आप? The doctor visits and the doctor sees the condition of the mother. क्या हुआ है? डॉक्टर देखिए ना, मेरी मम्मी अचानक से गिर गई, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। और मुझे शादी में भी जाना था, अभी हम लोगों को जाना इनका था तो शादी शुगर में, भी पूरा बढ़ा हुआ है। और हम लोगों को फ्लाइट में मिस होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते कहीं इन्हें लेके। इन्हें रेस्ट की बहुत क्या हो जरूरी गया है। इन्हें? इन्हें रेस्ट की बहुत जरूरी है, आप इन्हें ले नहीं जा सकते हैं। मैं क्यों? इन्हें इन्हें क्या हो मेडिसिन गया? कुछ दे रहा हूँ, बीपी और ये पूरा वीकनेस में है, ये बीपी शुगर बढ़ा हुआ है इनका। डॉक्टर, हम लोगों को अभी कहीं जाना था, तो क्या देखिए, हम आप जा अगर सकते हैं? ट्रेवल करेंगे तो इनकी जान का खतरा है। इन्हें मैं शादी में जाना है। शादी में कहीं नहीं जाना है, बस इनको बेड रेस्ट चाहिए अभी। तो अगर थोड़े दिन के लिए मैं नो 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 मेडिसिन लेती हूँ, but नो नो, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आप अपना रिस्क में ले जा सकते हैं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो जान पे खतरा है, इनका कुछ भी हो सकता है। ठीक है आप इन्हें डॉक्टर, अच्छे से ठीक है। खाना खिलाइए और रेस्ट कराइए। ठीक है ओके डॉक्टर। ओके, आप जा सकते हैं, कुछ मेडिसिन में लिख दे रहा हूँ, आप परचेज कर लीजिए। ओके ठीक है डॉक्टर। अर्चना तो जाना कैंसिल कर पर आंटी, हमें जाना भी था, मैंने स्कूल में भी बोला था कि मुझे अर्जेंट है और मुझे शादी में जाना था, तो मैंने बोला भी, और भैया ने मुझे बोला था जरूरी है आना, मैं कैसे ना जाऊँ? देख लो, तुम्हें अपनी मम्मी की हेल्थ देखनी है या फिर तुम्हें शादी So we में see that doctor has given the suggestion to Archana ma'am's mother that उनको कहीं travel नहीं करना है, अगर travel करना है तो उनकी जान खतरे में है, रिस्क की बात हो जाएगी। So unfortunately, Archana ma'am and her aunt and her mother had to cancel the ticket and वो गोवा वेडिंग पे नहीं जा सकते और इस बात की सूचना अर्चना अपने भैया को देती है ऑन फोन। हेलो अर्चना, कहाँ पहुंची? आ रही हो ना? भैया पता है मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, वो पता है उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? भैया पता नहीं, मैं अचानक स्कूल से आई और अचानक मैंने देखा कि मम्मा गिरी हुई थी। बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ?
बुआ भी कैसी है, ठीक है तो अभी? अभी भैया वो आने की हालत में नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अभी बेड रेस्ट चाहिए, उन्हें दवाई देकर उन्हें घर पे आराम करना होगा। क्या करूं मैं? नहीं अच्छा आ कोई पाऊंगी। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तुम बुआ को रेस्ट करने दो, मैं शादी पार करके मैं फिर से आता हूँ तुम्हारे पास। सॉरी भैया, आपने बोला था जरूरी है शादी में आना, फिर भी मैं नहीं आ पाई। सो सॉरी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। So this is how the play ends. तो आप सब देख सकते हैं कि अगर हम अपने लाइफ में एथिक्स फॉलो ना करें तो क्या हो सकता है। अगर हम झूठ का सहारा लें तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो थ्रू दिस एक्ट वी वांट टू शो द थ्री थिंग्स, बिकॉज एथिक्स was not followed by a teacher who was a very good teacher who was liked by the students. एथिक्स ना फॉलो करने की वजह से सबसे पहले तो उनको झूठ बोलना पड़ा। एक झूठ को छिपाने के लिए उन्होंने 2 झूठ बोले। और हम देखते हैं, as we say, there's a belief in all the religion that God watches everything. भगवान हर एक चीज को देखते हैं, इंसान की हर एक एक्टिविटी ईश्वर के कंट्रोल में है। तो बिकॉज ऑफ द कर्मा व्हाट अर्चना मैम डिड, अर्चना मैम ने बच्चों को रिवीजन नहीं कराया। इतने क्रूशियल समय में बच्चे उदास हो गए, बच्चे रोने लगे, बच्चे पैनिक स्टेट में आ गए, रिवीजन नहीं हुआ, बच्चों ने सफर किया। दूसरा, उनकी मदर जो कि एकदम भली चंगी थी, शी बिकेम इल, वो अचानक से बीमार हो गई। वो शी वाज हेल्दी बट ऑल ऑफ अ सडन शी बिकेम इल। तीसरा, शी कुडंट अटेंड हर सिस्टर्स वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा। तो तीसरा वो वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाई, तो 3 नुकसान हो गया। तो हम देखते हैं कि हमें इस तरह से नहीं करना है। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एज अ शिक्षक, एज अ टीचर। हमें अपनी बातों में, अपने एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो आपको जाकर के प्रिंसिपल ऑफिस में उसको रखनी चाहिए, बातों को स्पष्ट बताना चाहिए। सो देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी विद द मैनेजमेंट। टीचर्स का मैनेजमेंट के साथ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। प्लस वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट टू आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर मुझे पता है कि अचानक से मुझे छुट्टी लेनी है या छुट्टी लेना पड़ सकता है, तो हम एडवांस में ही एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर अपना सिलेबस अपडेट कर दें। इतनी जो भी फुलफिलमेंट्स रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की, उसको पूरा कर दें, एंड देन आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड एवरीथिंग विल एंड ऑन अ हैप्पी नोट। सो इन आवर लाइफ द moral ethics principles are very important, and with this we end our act.